آج ہم سٹارٹ کریں گے HTML کے اندر ڈفرینٹ جو ٹیگس ہیں، ٹیکسٹ کے حوالے سے، امیجز کے حوالے سے، ٹیبلز وغیرہ، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ کانٹینٹس ہیں جو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے کہ ورلڈ وائڈ ویب کیسے کام کرتی ہے، ویب پیج کیسے ہوتا ہے، فرسٹ جو پیج ہے وہ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں بیسک جو ٹیگس ہیں لائک ہائپر لنکس، امیجز، فارمیٹنگ، ان کو ڈسکس کریں گے۔ ورلڈ وائڈ ویب میں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یوز ہوتا ہے۔ اس میں جو پروٹوکول ہے وہ HTTP ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ یہ ٹیکسٹ بیس ریکویسٹ رسپانس پروٹوکول ہے۔ اس میں جو ریکویسٹ آتی ہے وہ ٹیکسٹ بیس میسج کی صورت میں جاتی ہے، لائک اگر کوئی کلائنٹ ہے وہ اس کے لیے جو براؤزنگ اپلیکیشن ہے وہ ویب براؤزر ہے۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ کو براؤز کرنا ہے، کسی ویب پیج کو ویو کرنا ہے، دین یو نیڈ اے براؤزر کروم، انٹرنیٹ ایکسپلورر، سفاری یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی جو براؤزر ہے وہ یوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلائنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، لائک یوزر کی طرف۔ تو یوزر نے جب بھی کوئی پیج براؤز کرنا ہوتا ہے تو وہ پیج ریکویسٹ کرتا ہے سرور کو۔ تو سرور جو ہے اس پہ کوئی سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے، لائک IIS اپاچی یا کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے جو مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے ویب سرور کی۔ تو ویب سرور اس کو رسپانس کرتا ہے HTTP کی صورت میں ہی، اور اس میں جو پیج ہوتا ہے، اس کی جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے وہ یوزر کو ویب براؤزر میں آ جاتا ہے۔ ویب پیج کیا ہوتا ہے؟ ویب پیج ایک ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے جس میں HTML ہم رائٹ کرتے ہیں۔ تو HTML اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ یہ ایک نوٹیشن ہے جس میں ہم ڈاکومنٹ اسٹرکچر بناتے ہیں۔ تو ویب ڈیولپمنٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ویب میں جو اسٹرکچر ہے وہ HTML میں بنتا ہے۔ اس کی فارمیٹنگ یا لک اینڈ فیل جو ہے، اسٹائلنگ آپ کہہ لیں، وہ ہم CSS میں کرتے ہیں۔ اس میں اینیمیشن، انٹریکٹیوٹی، یا اس کو ہم مزید کوئی کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ڈیٹا ویلیڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جاوا اسکرپٹ یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ میں بہت سی لائبریریز ہیں لائک jQuery، جس میں کوئی ایڈیشنل افیکٹ آپ نے ڈالنے ہو اپنی ویب سائٹ میں تو وہ آپ jQuery سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی سرور سائٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، لائک PHP، ASP، JSP، کوئی بھی اس طرح کی سرور سائٹ اسکرپٹنگ لینگویج جو آپ کی ویب سائٹ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے۔ تو ڈیٹا بیس جو ہے MySQL، SQL سرور، اوریکل، جتنے بھی ریشنل ڈیٹا بیسز ہیں یہ سب آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو ڈاکومنٹ اسٹرکچر ہے وہ HTML میں بنتا ہے۔ HTML کی جو فائل ہے اس کی ایکسٹینشن .htm یا .html ہوتی ہے۔ تو جو HTML فائلز ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں، لائک Notepad++، PSP، جو ونڈوز میں بلٹ ان جو ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویژول اسٹوڈیو جو کوڈ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سبلائم ٹیکسٹ ہے، یہ ایک ایڈیٹر ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ڈفرینٹ جو ایڈیٹرس ہیں ان کو یوز کر کے آپ کوڈ کر سکتے ہیں HTML کو، جاوا اسکرپٹ کو یا PHP کو۔ اس کے علاوہ کچھ جو ایڈیٹرس ہوتے ہیں وہ what you see is what you get ایڈیٹرس ہوتے ہیں، لائک ویژول ایڈیٹرس، جس میں جس طرح ویژول لینگویجز میں آپ کوڈ کرتے ہیں، ویژول بیسک ہو گئی یا C# ہو گئی، تو اسی طرح HTML میں اگر آپ کو ویژول کوڈنگ کرنا چاہیں تو اس میں مائکروسافٹ فرنٹ پیج ہے، میکرومیڈیا ڈریم ویور ہے، نیٹ اسکیپ کمپوزر ہے یا مائکروسافٹ ورڈ ہے۔
तो इनमें से कोई भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप विजुअली आप ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, जिसमें आपने कोई बटन लगाना हो, कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी हो, कोई टेक्स्ट टाइप करना हो, आप उसमें ये सारा कुछ विजुअली कर सकते हैं। तो आते हैं अब HTML के बेसिक की तरफ। कुछ जो मेन टैग्स हैं HTML में जो यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो HTML के स्ट्रक्चर में हमारे पास एलिमेंट और टैग्स होते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट है HTML का, वो HTML के टैग के साथ स्टार्ट होगा और HTML टैग के साथ ही क्लोज होगा। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो क्लोजिंग टैग के साथ एक स्लैश होगी, तो जो ये HTML ये ओपनिंग टैग है और ये फॉरवर्ड स्लैश है, दिस इज क्लोजिंग टैग। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स या टैग्स, वो एक दूसरे के साथ नेस्टेड होते हैं। लाइक HTML जो है ये रूट एलिमेंट है, सबसे जो पहले एलिमेंट आएगा HTML है, उसमें फिर ये हेड और बॉडी सेक्शन होते हैं। तो हेड के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टैग्स जो हैं वो हेड में होते हैं। बॉडी में हम वो टेक्स्ट लिखते हैं, वो टैग्स लिखते हैं जो हमें विजिबल होते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स उस टैग की प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। लाइक हमारे पास एक टैग है जो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। आप चाह रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में इमेज डिस्प्ले हो, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए IMG टैग है, और इसी का एट्रीब्यूट जो है वो SRC क्या है एक्चुअली, इज़ अ सोर्स एट्रीब्यूट। इसमें आपने जो इमेज डिस्प्ले कराना है उस फाइल का नाम, और अगर ये फाइल सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो फिर आपने उसका पाथ भी इसमें इंक्लूड करना होगा। और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो ALT है। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से सेपरेट करने के लिए कोई करेक्टर यूज़ नहीं होता, उसके लिए आपने जस्ट स्पेस यूज़ करनी है, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो कोटेशन मार्क्स में आपने या इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है। तो ALT एक्चुअली अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अगर किसी वजह से आपकी ये पिक्चर logo.jpg लोड नहीं होती वेब पेज के ऊपर, तो वहाँ पे ये लोगो एक टेक्स्ट लिखा नजर आएगा। तो HTML का जो स्ट्रक्चर है उसके दो मेन सेक्शन हैं, हेड और बॉडी। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, हेड टैग में क्या होता है और बॉडी सेक्शन में क्या होता है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में आप रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सोर्स कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखते हैं, आप कोड को इंडेंट करते हैं, इसी तरह HTML कोड को भी आप फॉर्मेटेड लिखते हैं ताकि इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो। जितने भी ब्लॉक एलिमेंट है वो नई लाइन पे आपने लिखने हैं। ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आप लिखते हैं तो ब्राउज़र उसको नई लाइन के ऊपर शो करता है। लाइक आप div टैग लिखते हैं तो div जो है वो पूरी एक लाइन को स्पैन करता है। इसलिए जब भी आप कोई भी ब्लॉक लेवल का एलिमेंट लिखेंगे तो उनको आप नई लाइन पे लिखें। कोई भी अगर नेस्टेड एलिमेंट होगा उसको आप इंडेंट करके लिखें, उसमें एक टैब की स्पेस दें और उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट को आप टाइप। अगर आप कहीं पे मल्टीपल स्पेसेस भी दे देते हैं, लाइक आपने एक टैग लिखा है और उसके दरमियान में रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक टैब या दो टैब आपने इंसर्ट कर दी है। एक टैब का मतलब है 4 वाइट स्पेसेस,
वाइट स्पेसेस का मतलब है ब्लैंक, आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, जस्ट स्पेस बार हिट किया है। तो इस तरह के जो वाइट स्पेसेस हैं ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। अगर आप 50 भी उसमें वाइट स्पेसेस डाल देते हैं तो ब्राउज़र उसको एक ही कंसिडर करेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेस डालनी है किसी भी टेक्स्ट में या डिफरेंट टैग्स के अंदर, उसके लिए HTML में एक स्पेशल टैग है एम्परसेंड BSP, उसको यूज़ करके हम स्पेसेस को ऐड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल टेस्ट डॉट HTML। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो टॉप पे लिखेंगे आप डॉक टाइप HTML। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होती है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपने HTML5 टाइप करनी है, HTML5 को यूज़ करना है, तो फिर आपने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML ये लिखना है। उसके बाद फिर ये HTML का जो रूट टैग है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये एंड होता है। अब इसमें दो सेक्शन है, एक हेड का और दूसरा बॉडी सेक्शन। तो हेड के अंदर जो मोस्टली जो टैग यूज़ होता है वो टाइटल का टैग है। तो इस टाइटल के टैग में आपने लिखा माई फर्स्ट HTML पेज, टाइटल का ये ओपनिंग टैग है और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है। तो माई फर्स्ट HTML पेज जो है वो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। इस टैग की जो आउटपुट है इस ब्राउज़र की लेफ्ट टॉप के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है अपनी आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में, जो आप वेब पेज बना रहे हैं उसके बारे में। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है तो इस जो लेफ्ट टॉप के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन अपीयर होगी। इसके बाद ये हेड टैग क्लोज होता है और बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। बॉडी में आप ऐसे टैग लिखते हैं जिसकी आउटपुट ये आपकी जो ब्राउज़र की स्क्रीन है यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है यहाँ पे अपीयर होती है। तो ये बॉडी का ओपनिंग टैग है एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। इसमें आप यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ टैग। दिस इज सम टेक्स्ट, ये आपने टेक्स्ट लिखा, दिस इज सम टेक्स्ट, और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का। यहाँ अब इस पैराग्राफ की जो आउटपुट है दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल अपीयर ऑन द वेब पेज। तो ये पूरा जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल अपीयर ऑन द वेब पेज, तो ये एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी जो है फर्स्ट वेब पेज अगर आपने बनाना है तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस फाइल का नाम आप रखेंगे test.html। तो HTML इसमें एक्सटेंशन है, टेस्ट की बजाय आप test1, माई फर्स्ट वेब पेज, वट एवर कोई भी फाइल नेम इसको रख सकते हैं। तो ये फाइल आप क्रिएट करें, लाइक आप कर लें, राइट क्लिक करें किसी भी फोल्डर में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल, तो उसकी एक्सटेंशन .txt होगी, तो आप .txt की बजाय उसको .html कर दें, न्यू टेक्स्ट की बजाय टेस्ट कर दें, तो वो आपकी .html फाइल होगी। और उसको आप ओपन कर दें किसी भी एडिटर में, लाइक आप नोटपैड प्लस में इसको एडिट कर लें, कोई भी आपकी जो अपनी चॉइस का एडिटर है उसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक जो फाइल है एडिटर में ओपन करके। ये आपको नोट पैड नज़र आ रहा होगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नोट पैड प्लस प्लस एडिटर है। तो आप इसको यूज़ कर लें या किसी और एडिटर को यूज़ कर लें। यहाँ पे ये डॉक टाइप HTML, ये HTML यहाँ से आपका जो टैग्स हैं स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने इसको चेक करना हो, लाइक ये हेड सेक्शन आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, बॉडी सेक्शन ये यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली वेब पेज का। ये HTML का जो टैग है मेन टैग, इसके अंदर ये दो सेक्शन है, हेड और बॉडी। तो हेड टैग को अगर आप ओपन करें तो इसमें हमने अभी फ़िलहाल सिर्फ एक टैग रखा है, माई फर्स्ट HTML पेज। और बॉडी सेक्शन में ये दिस इज सम टेक्स्ट। तो इसको मैंने जो है test.html फाइल है जो यहाँ पे भी ये शो हो रहा है, इस नाम से सेव किया।
अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो ये आपको इसकी आउटपुट यहाँ पे नज़र आएगी, दिस इज सम टेक्स्ट, और ये जो आपने लिखा था टाइटल में, माय फर्स्ट HTML पेज। अगर आपने कोड देखना हो, व्यू पेज सोर्स करें, तो ये कोड आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे जस्ट आप कोड देख सकते हैं। अगर आपने कोड को एडिट करना है तो उसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस या कोई और एडिटर यूज़ करना होगा। तो इसमें हम देख चुके हैं, ये टाइटल हमारा ओपनिंग टैग था, और ये जो स्लैश टाइटल है ये क्लोजिंग टैग है। ये HTML हेडर है जो माय फर्स्ट HTML पेज डिस्प्ले हो रहा था, और ये बॉडी में जो टेक्स्ट था ये वो डिस्प्ले हो रहा था। इसके अलावा कुछ और टैग्स भी हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लाइक हाइपरलिंक टैग्स। So आपने sometime you need to connect your website with another website. Like आपने, ये एक वेबसाइट है telric.com, और इसका लिंक आपने अपने वेब पेज में देना है। तो यहाँ पे ये टैग है, एक्चुअली एंकर टैग इसको कहते हैं। एंकर टैग ये ओपनिंग टैग है, और इसका जो एट्रीब्यूट है वो HREF है, हाइपर रेफरेंस। तो एच रेफरेंस में आपने जो भी वेबसाइट का लिंक है वो आपने डबल कोमास में इसमें लिख देना है, और पूरा क्वालिफाइड आपने इसमें URL लिखना है, लाइक http://www.telric.com.msn.com, yahoo.com, वट एवर, जो भी आप उसमें जिस वेबसाइट को भी आप लिंक करना चाह रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। टाइटल आप रखेंगे टेलरिक इसका, और लिंक टू टेलरिक वेबसाइट, ये जो होगा इसके ऊपर ये आपका जो लिंक है वो अपीयर होगा। इसके आउटपुट भी देखते हैं। देन वी हैव इमेज टैग। इमेज टैग को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सोर्स फाइल है, वो पिक्चर है लोगो डॉट जिफ, जिसको आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। और आर्ट इज इक्वल टू लोगो, ये वो टेक्स्ट है। अब इन केस अगर आपका जो लोगो डॉट जिफ है ये फाइल डिस्प्ले नहीं होती वेब ब्राउज़र में किसी भी वजह से, तो उसकी बजाय ये टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स भी हैं। अब जब आपने कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, लाइक दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, तो अपने टेक्स्ट को आपने इटैलिक और ज़रा स्ट्रॉन्ग दिखाना हो तो ये EM का टैग है, ये ओपनिंग टैग, एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। और फिर इसी तरह न्यू लाइन के लिए BR और ये स्लैश, या सिर्फ BR भी लिखें तब भी ये टैग जो है वो आउटपुट शो करता है। फिर उसके अलावा दिस वन इज स्ट्रॉन्ग मोर एम्फसाइज्ड, जो आपका एम्फसाइज टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग का टैग आप यूज़ कर सकते हैं। वही एग्जांपल है, इसको हम दोबारा अगर इसकी आउटपुट देखते हैं, सम टैग्स डॉट HTML फाइल का नाम रखें आप, या इसके अलावा कुछ भी रखें, तो ये उसकी आउटपुट है। डॉक टाइप HTML वैसे आएगा, HTML जो आपका रूट एलिमेंट है, उसके बाद हेड और बॉडी, हेड और बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन में आप लिखेंगे सिंपल टैग्स डेमो, तो ये आपके लेफ्ट टॉप के ऊपर नज़र आएगा ब्राउज़र के ऊपर। और बॉडी में फिर ये एंकर टैग है, फिर ये ब्रेक लाइन है, ये इमेज का टैग है। इसकी जो आउटपुट है ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ लिंक। तो ये दिस इज़ अ लिंक जो है, इसके ऊपर आपने telric.com ये जो वेबसाइट है इसको लिंक किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट वेबसाइट होगी वो ये वाली ओपन होगी।
उसके बाद क्या है, इमेज सोर्स इज इक्वल टू लोगो डॉट जिफ। तो ये इमेज है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे ये आप कोई भी लोगो कोई फाइल रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एंड एम्फसाइज। तो उसके बाद ये एम्फसाइज जो इटैलिक टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ब्राउज़र में उसी फाइल को मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो ये एक जो है एग्जांपल हमने जो सम टैग्स डॉट एचटीएमएल की एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे थे, वो सारा कोड मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अब मैंने इसके साथ कोई इमेज इस डायरेक्टरी में नहीं रखा, तो अभी देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस इज़ अ लिंक, दिस इज़ अ लिंक। ये जो टेक्स्ट हमने एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखा था, और ये जो आपको इसमें रेक्टेंगल में नज़र आ रहा है टेलरिक साइट, ये एक्चुअली हमने टाइटल में रखा था। तो टाइटल में ये टेलरिक साइट आपको नज़र आएगा। अब लोगो के लिए हमने यहाँ पे कोई लोगो अटैच नहीं किया, तो इस वजह से वो पिक्चर डिस्प्ले नहीं होगी। पिक्चर का ये आइकन इस तरह डिस्प्ले होगा, ब्रोकन जो है आइकन शो होगा। इसका मतलब है पिक्चर या तो लोड नहीं हुई या अवेलेबल नहीं थी डायरेक्टरी में। अब हमारे केस में पिक्चर जो थी वो अवेलेबल नहीं थी डायरेक्टरी में, तो उसकी बजाय जो आर्ट में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था लोगो, वो डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग का हमने लिखा था टैग बोल्ड, वो अपीयर होगा। और ये एम्फसाइज्ड का, इसी का अगर हम सोर्स कोड देखते हैं, व्यू पेज सोर्स, तो ये वही कोड है जो हमने नोट पैड में लिखा है, और इसको हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने डिस्कस किया आल्ट विद वैल्यू लोगो। ये हमने जो आल्ट का एट्रीब्यूट सेट किया था कि अगर लोगो या पिक्चर जो है वो लोड नहीं होती, किसी भी वजह से डिस्प्ले नहीं होती, तो फिर ये लोगो जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले होगा। इस तरह कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हर एलिमेंट या टैग के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, लाइक आईडी, स्टाइल, क्लास और टाइटल। ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं ये हर एलिमेंट के साथ आप सेट कर सकते हैं। आईडी का मतलब है, आईडी जो है वो कोई भी आप उसका जो नेम रखें, और वो नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए उस आपकी जो सोर्स कोड वाली फाइल है उस फाइल के अंदर। लाइक आपने कुछ टेक्स्ट फील्ड का नाम टीएफ रख दिया है, तो वो टीएफ किसी और को आप आईडी असाइन नहीं कर सकते। तो इसी तरह फिर जो टाइटल है, जिस तरह हमने ये देखा भी टेलरिक साइट एक वो रेक्टेंगल येलो कलर की जो शो होती है, दैट इज डिस्प्लेइंग एज अ हिंट। तो आप किसी भी एलिमेंट का कोई हिंट रखना चाहें तो उसके लिए टाइटल एट्रीब्यूट आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एडिशनल होते हैं बाकी किसी भी एलिमेंट्स में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हेडिंग एंड पैराग्राफ्स के टैग्स। हेडिंग एंड पैराग्राफ्स के जो टैग्स हैं वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के हवाले से यूज़ होते हैं। लाइक हेडिंग्स जो है HTML के अंदर 6 लेवल हैं हेडिंग्स के। तो H1 इज़ द फर्स्ट लेवल। H1 का मतलब है कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज। तो H2 आप करेंगे तो वो सब हेडिंग होगी, H3 होगी तो उसका जो हेडिंग का फॉन्ट साइज है वो H2 से भी कम होगा, और इसी तरह H6 तक ये डिफरेंट जो फॉन्ट साइजेस हैं ये अप्लाई हो जाएंगे। तो आप हेडिंग्स कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए H1 से लेके H6 तक हमारे पास HTML में टैग्स हैं। तो अगर कहीं पे आपने पैराग्राफ इंक्लूड करना है वेब पेज में तो उसके लिए P टैग है। तो P टैग है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। तो जितने भी आपने पैराग्राफ इसमें लिखने हैं तो आपको एक पी टैग उसके लिए इंसर्ट करना होगा। और जो पी टैग है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि जब भी आप नया पैराग्राफ लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवीजन, जो डिव टैग है, डिव एंड स्पैन टैग। डिव क्या करता है कि जिस तरह ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है और उसका कुछ बैकग्राउंड है, इसी तरह का अगर आप चाह रहे हैं कि HTML में आप टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले करा दें और उसका फिर बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दें तो ये डिव टैग से आप कर सकते हैं। तो डिव इज द ओपनिंग टैग, डिव और इसमें स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड और कॉलन के बाद है स्काई ब्लू। अब ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं ये भी आप तकरीबन हर एलिमेंट के साथ लिख सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये इनलाइन CSS है कि आप किसी एक एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आप हर एट्रीब्यूट में, हर एलिमेंट में आप ऐसे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये जो डिव बॉक्स है इसकी स्टाइलिंग के लिए हमने इसमें ये जो बैकग्राउंड, अब इसमें क्या है कि बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर्टी है और इसकी जो वैल्यू है वो स्काई ब्लू है। तो ये इसमें जो हम डिस्क्राइब करते हैं स्टाइल शीट्स के अंदर उसके लिए जो वैल्यू होगी वो कॉलन के बाद होगी। जबकि HTML में जब हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं वो सोर्स लोगो डॉट दिस, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर होता है इसलिए इसमें कॉलन वगैरह यूज़ नहीं होता। लेकिन जब हम स्टाइलिंग में यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड कॉलन स्काई ब्लू। तो बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टी है और स्काई ब्लू क्या है, इसकी वैल्यू। तो दिस इज अ डिव, ये हमने टेक्स्ट इसमें लिख दिया और इसके बाद ये क्लोजिंग डिव टैग है। इसी एग्जांपल को, इन्हीं एट्रीब्यूट्स को और एलिमेंट्स को हम एक एग्जांपल की शक्ल में देखते हैं कि ये हमने यहाँ पे हेडिंग्स कुछ टाइप की हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं और ये डिव है। ये आउटपुट है हेडिंग्स डॉट HTML की। इसमें 3 लेवल की हेडिंग्स हैं। ये जो 3 हमने यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं H1 H2 H3, इन तीनों की आउटपुट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3। और इसके बाद जो पैराग्राफ टैग्स हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ माय सेकंड पैराग्राफ। तो आप इसमें देखें कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो वो नई लाइन पे स्टार्ट होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी कहीं पे आप यूज़ करेंगे तो उससे एक पहले लाइन और उसके बाद एक लाइन जो है वो ब्लैंक आएगी। तो जिस तरह ये दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ है तो इससे पहले यहाँ पे स्पेस है, ये एक जो लाइन, वन लाइन स्पेसिंग यहाँ पे इसने छोड़ी है और आफ्टर पैराग्राफ भी वन लाइन स्पेसिंग है। आपने दूसरा पैराग्राफ यूज़ किया तो उससे ऊपर भी एक वन लाइन स्पेसिंग है और उसके बाद भी वन लाइन स्पेसिंग है। फिर डिव है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये अब एक टेक्स्ट एरिया है जिसने डिवाइड किया है आपकी इस वेब पेज को और उसका आपने बैकग्राउंड स्काई ब्लू रखा है और उसमें टेक्स्ट जो है दिस इज़ अ डिव है। इसी एग्जांपल की आउटपुट अगर हम ब्राउज़र में देखें तो ये नोटपैड प्लस प्लस में वही सेम कोड है जिसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हेडिंग टैग्स हैं और ये पैराग्राफ्स हैं और ये डिव टैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसको अगर हम ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो ब्राउज़र में इसकी जो आउटपुट आती है
वो ये आउटपुट आएगी। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और सब हेडिंग 3, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये सेकंड, और उसके बाद ये div टैग। इसका व्यू पेज सोर्स करें तो ये वो सेम एग्जांपल है